پی ایس ایل کی فاتح ٹیم پر ہوگی ڈالرز کی برسات، $5 لاکھ کا بڑا پرائز ملے گا۔ کرکٹ بورڈ نے انعامی رقم کا اعلان کر دیا، پاکستانی روپے میں رقم 14 کروڑ روپے بنتی ہے۔ رنر اپ ٹیم کو $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فرنچائزز کے لیے الگ انعامی رقم مقرر، ٹائٹل جیتنے والی فرنچائز کو $5 لاکھ ملیں گے۔ رنر اپ فرنچائز کو $3 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام رکھنے والی فرنچائز کو $2 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ ایران سے ڈیل کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا، جلد جائزہ لوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے ایران کی تجاویز قبول ہوں گی۔ ڈیل کے ڈرافٹ اور اس کے سیاق و سباق کو خود دیکھوں گا۔ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب تک اس کی زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا کہ ایران سے ہماری مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے۔ ڈیموکریٹ اور کچھ ریپبلکن سرکان ہماری مذاکرات کی صلاحیت محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے، دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ ایران پر دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں۔ تہران کی عسکری صلاحیت اور لیڈرشپ کو ختم کر دیا، کوئی نہیں چاہتا چند سال بعد دوبارہ جنگ کریں۔ ایک سوال پر بولے، امریکہ جرمنی سے 5000 سے کئی زیادہ فوجی واپس بلائے گا۔ سفارتکاری یا کشیدگی، فیصلہ امریکہ کی کورٹ میں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی پاکستان کو تجاویز بھیجنے کی تصدیق۔ کاظم غریب آبادی نے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات سے متعلق بریفنگ میں کہا، ایران بات چیت اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، ہم ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی، ایران کا ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کے تبادلے اور سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران امریکہ جاری سفارتی عمل میں پاکستان ہی بنیادی ثالث ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت پاکستانی کوششوں کو سراہتی ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا انحصار اس کے رویے پر ہے۔ ایران کا نیا مذاکراتی منصوبہ امریکی اور اسرائیلی جارحانہ جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کیا گیا۔ تہران اپنے موقف اور مطالبات میں مکمل واضح ہے۔ امریکہ واقعی مسائل کے حل اور مذاکرات میں پیش رفت کا خواہاں ہے تو طرز عمل تبدیل کرے۔ امریکہ کو جارحانہ رویہ ترک کر کے ایران کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کی جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت، کہا اپنے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی ضروری ہے، اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور روس کا طویل مدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، روس ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے، روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ عباس اراغچی کا فرانسیسی ہم منصب کو ٹیلی فون ثالثی کی کوششوں اور اپنے ہرمز سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی اٹلی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ایران میں جاری تنازع اور خطے کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، معاشی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی قیام امن کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی قائد نون لیگ کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज ने तामीराती अमल तेज करने की हिदायत कर दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। हुकाम को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दें। नुमाइश से जेल चौरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज़ किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सड़कों के पेच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए स्फॉल्ट बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जैम में नहीं छोड़ सकते। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया और काम तेज करने की हिदायत की। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी। आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, प्रोजेक्ट के बायस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। दफ्तर में बेपनाह रश, लंबा इंतजार और AC बंद था। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और सहूलतें बेहतर करने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी विजिट कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। ताकतवर तबकात को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दीरवाला में जलसे से खिताब। कहा, पेट्रोल पर नाजायज तरीके से 160 रुपए लेवी ली जा रही है। पेट्रोल की लेवी गरीब आवाम अदा करते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले एक साल में 550 अरब टैक्स देते हैं। तनख्वाहदार तबका सालाना 650 अरब रुपए टैक्स देता है। जमात इस्लामी आवाम के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएगी। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वस्ती और बालाई इलाकों में हीट वेव। नवाबशाह में पारा 45 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, दर्जा हरारत 40 तक जा पहुंचा। शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस। शहर कायद में कल भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। ईरान का अमरीकी सदर के कज़ाकी से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि मुजरिमाना नौयत का वाज़ेह अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और UN कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फारस और बहराए ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरानी तिजारत से मुताल्लिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी ले रहे हैं। जर्मनी से अमरीकी अफवाज का मुमकिन इनखला। नेटो ने अमरीका से वजाहत तलब कर ली। नेटो हुकाम का कहना है,
अमरीका जर्मनी से मुतल्लिक प्लान को वाज़ेह करे, इक़दाम से यूरोपीय सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं। फौजी तैनाती में तब्दीली इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होनी चाहिए। मशरक़ी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुत्तहिदा दिफाई मौक़िफ़ बरकरार रखना नागुज़ीर है। जर्मनी में अमरीकी अफवाज नेटो के दिफाई निज़ाम का कलीदी हिस्सा है। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां आलमी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी कंपनीज और इदारों को पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं। अमरीकी और चीनी सुदूर की मुलाकात में आपने हॉर्मस और जंगबंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। चीन के यूएन में मुस्तकिल मंदूब फोकान का बयान, कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा वसी हैं। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम रहें। दुनिया बहुत बड़ी है, चीन और अमरीका दोनों तरक्की कर सकते हैं। अमरीकी सदर 14 और 15 मई को चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। जंग बंदी के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद जाँ बहक। हमले में जनूबी लबनान के ज़िला सौर के कस्बे अल समिया को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान पर फ़ज़ाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का सिलसिला जारी। हिज़्बुल्लाह का ज़िला सौर में इसराइली गाड़ियों और फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा, कहा कि कार्रवाई में दुरुस्त और मौसर ज़रबें लगाई गई हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बाद से 828 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। आदाद-ओ-शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं हैं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात।